ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನ ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶರಣು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಜಾತಿ ಹಿಡಿದು ಸೂತಕವನ್ನು ಅರಸುವೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಹಿಡಿದು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಅರಸುವೆ. ಇದೇಕೋ ಮರುಳ ಮಾನವ, ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕನೆಂಬೇನು. ವಿಪ್ರರು ಶತಕೋಟಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು? ವಿಪ್ರರು ಶತಕೋಟಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು? ಭಕ್ತ ಶಿರೋಮಣಿ ಎಂಬುದು ವಚನ. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಪಾದ ಪರುಷ ನಂಬು, ಕೆಡಬೇಡ ಮಾನವ. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಪಾದ ಪರುಷ ನಂಬು ನಂಬು, ಕೆಡಬೇಡ ಮಾನವ, ಕೆಡಬೇಡ ಮಾನವ. ಇದೊಂದೇ ವಚನ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಚನ ಆತ್ಮ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇದೇ ವಚನವನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ, ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮೇಲು ಕೀಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಮಾಜವನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರೇ ಬಾಯಿಲಿಂದ ಜಾತಿ ಭೇದದ ವಿಚಾರಗಳು ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನದ ವಚನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ವಚನವನ್ನು ಇವತ್ತ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂದು ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರದ ನಂತರ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ನೋವಿನಿಂದ ಈ ಜಾತಿ ಭೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನೀತಿವಂತರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದವರು ಯಾರು, ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದರು? ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ಧರ್ಮವೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಲಾರದೆ ಮೇಲು ಕೀಳು ಮಾಡಲಾರದೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಬದುಕುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರಾದವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ವಚನವನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವಚನ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನದ ವಚನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ये जो भारत देश के अंदर हजारों जात कास्टिज्म जो बना है ना, ये बहुत बड़ा गलती हो गया है. इसकी वजह से एक को देखे तो दूसरे को खुशी नहीं है. एक अलग अलग अंदर का विचार हो गए. ये सब अलग अलग विचार पूरा कचरा निकाल के 12वीं शताब्दी में हमारा बिज्जल राजा का पीरियड में प्रधानमंत्री होकर महात्मा बसवण्णा ने ये पूरा कचरा निकाल के फेंके थे. उन्होंने नीति नड़ावली की, मतलब अपना आचरण, जिसका आचरण शुद्ध रहा, सभी इंसान को बराबर देखने का रहा, सभी जीव राशि को बराबर देखने का, ख़त्म, कास्टिज्म का ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा करे थे महात्मा बसवण्णा जी. बसवा कल्याण के अंदर 36 साल अनुभव मंडप चलाकर. तो जाति हिडिದು ಸೂತಕವನ್ನು ಹರಿಸುವೆ. जात के नाम पर कुछ भी करेंगे तो कोई देश भी प्रगति नहीं होता, हम भी प्रगति नहीं होते. वहाँ पर द्वेष पैदा होता है एक दूसरे के ऊपर. आगे कहते हैं महात्मा बसवण्णा जी, ज्योति हिडिದು कत्तಲೆಯನ್ನು ಹರಿಸುವೆ. अंधेरा है, समझो अमावस का अंधेरा, कितना भी बड़ा अंधेरा रहने दो, छोटा सा एक चिमनी दीपा, एक काड़ी खींच के चिमनी लगा है तो वो अंधेरा वहाँ पर रह सकता है क्या? क्वेश्चन है, नहीं रह सकता. ಜಾತಿ ಹಿಡಿದು ಸೂತಕವನ್ನು ಹರಿಸುವೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಹಿಡಿದು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹರಿಸುವೆ. अंधेरा एक दीप लगाए, एक चिमनी लगाए, एक चिराग लगाए तो अंधेरा दूर भाग जाता है. इदेको मरुड़ा मानव, ऐसा क्यों कर रहे हैं तुम लोग? क्या आपका दिमाग में क्या है? क्यों ये अज्ञान का कचरा भर लिए? ऐसा महात्मा बसवण्णा जी 890 साल पहले लिखे सो वचन है. इदेको मरुಳ मानव, जातिಯಲ್ಲಿ अधिक निंबेनु. कौन सा भी मैं बड़ा जा कास्ट का हूँ बोलकर बताएंगे तो कास्ट का नाम पर इंसान का चाल चलन, उनका रीति नीति, उनका भाषा, उन सबको समान देखने वाले, सकल जीवात्मರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ, मतलब सभी इंसान जानवर के ऊपर दया करने वाले कौन रहता ना, वो है असली जात के, असली सृष्टि का मालिक का भक्त वो बोलते हैं. इदेको मरुಳ मानव, जातिಯಲ್ಲಿ अधिक निंबेनु. कास्ट में कोई भी बड़ा नहीं है, चाल चलन ठीक रहे तो बस. आगे क्या कहते हैं, विप्रರು ಶತಕೋಟಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು. महात्मा बसवण्णा जी खुद, जो लोग मेहनत नहीं करते, लोगों को पूजा पाठ के बारे में बताते, ज्ञान के बारे में जो बोलते हैं ना, वो लोगों के कंट्रोल में हमारा भारत देश चल रहा है, समझो. तो इतने लाखों करोड़ों लोग रहे तो भी, तो भगवान का विचार बताने वाला रहा तो भी इस भारत देश के अंदर इतना अंधश्रद्धा, मूढ़ आचरणे, बहुत सारे भगवान, बहुत सारे कास्ट, बहुत सारे अलग अलग एक दूसरे के प्यार मोहब्बत से नहीं रहने का परिस्थिति निर्माण कौन किया है, क्यों हो गया है, ये क्वेश्चन है. अब सर दोस्त, भक्त शिरोमणि ಎಂಬುದು वचन. इस शरीर एक सृष्टि का, परमात्मा का मंदिर है, देवस्थान है. इस शरीर के अंदर का मालिक को कौन पहचान कर जो मेहनत कर कर जीता है ना, वो बहुत बड़ा कास्ट का होता है. मतलब ईश्वर का समझो, परमात्मा का समझो, क्या अल्लाह का समझो, किसी का भी नाम लो, लेकिन नाम हजारों होंगे,
दुनिया के अंदर देश हजारों देश होंगे, लेकिन सूरज एक है, चांद एक है, आसमान एक है, जमीन एक है, हवा एक है, पानी एक है, सब एक एक मिलकर इडी ब्रह्मांड एक कूडल संगम देवा बोलते महात्मा बसवण्णा जी। हमारा 12वीं शताब्दी का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, उनका विचार से अगर हमारा देश के लोग समझ कर चले तो यहाँ ये दुनिया का बहुत बड़ा अमीर देश बन सकता है और सभी हेल्थ से रह सकते हैं। अभी कोरोना रोग बीमारी का शुरू हो गया। मैं पूछता हूँ, रोज़ जात पात के नाम के ऊपर झगड़ा करने के बदले में देश के अंदर गुटखा खाकर थूक रहे, रोड के ऊपर बीड़ी सिगरेट पीकर धुआं फेंक रहे, तो जिसको सर्दी जुकाम हो गए, कोरोना हो गए, मास्क डालो बोलते, तो ये खाकर थूकने वालों को क्यों बंद नहीं कर रहे? अब तक इसके बारे में कौन सा राजकारणी, कौन सा सरकार सोचा क्या? ये बंद होना चाहिए, जब कोरोना रोग कंट्रोल में आ सकता है। कहाँ बोले हाथ थूकने का? उनके अंदर कितनी बीमारियां रहते, टीबी रहता, कैंसर रहता, अस्थमा रहता, बहुत सारे बीमारी बाहर स्प्रे कर रहा हूँ, उसके बारे में कोई तो आज तक जिक्र निकल रहा? क्या नहीं निकल रहा। यही तो है देश का द्रोह का काम। देशद्रोही किसको बोलते? हमारा देश स्वच्छ भारत बनाना है ना, तो स्वच्छ विचार भी रहना चाहिए। अनुभव मंटप का, बसवा कल्याण का दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट बोलते, हाँ, तो फर्स्ट पार्लियामेंट सबका सबसे पहला विश्व संविधान बोलते हैं ना सभी लोग। हाँ, इसके बारे में विचार करना जरूरी है समझता हूँ मैं, एक विनंती के साथ। ವಿಪ್ರರು ಶತಕೋಟಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು, ಭಕ್ತ ಶಿರೋಮಣಿ ಎಂಬುದು ವಚನ. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಪಾದ ಪರುಷ ನಂಬು ಕೆಡಬೇಡ ಮಾನವ. पादा बोले तो पैर नहीं है, पादा बोले तो ज्ञान, ज्ञान परमात्मा का ज्ञान, अंदर का मालिक का ज्ञान। अंदर बहुत बड़ा मालिक है, सब देख रहा है हम क्या क्या कर रहे हैं, इसका सजा एक न एक दिन भुगतना पड़ता। अच्छा काम करे तो अच्छा होता, बुरा काम करे तो बुरा होता, कभी ना कभी इसका हिसाब हम देना पड़ता। ये शरीर है ना सुप्रीम कोर्ट है, ये शरीर है ना हाई कोर्ट है, ये शरीर ही सबसे बड़ा कोर्ट है। अंदर तराजू लेकर बैठा है दुनिया का मालिक, सबके अंदर है। ये सच्चाई दिखाने के वास्ते मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस रिक्वेस्ट करता हूँ इस माध्यम से, हर गांव में अनुभव मंटप का ज़रूरत है, हर गांव में बसवा मंटप का ज़रूरत है। वहाँ पर हफ्ते को एक बार ऐसे विचार चिंतन करते जाएंगे तो आने वाले पूरे युवा बच्चे एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं, अच्छा देशभक्त बन सकते हैं, एक शरीर का मंदिर का भक्त बन सकते हैं। इतना बोलते हुए आप सबको इस महात्मा बसवण्णा, हमारा 12वीं शताब्दी का प्राइम मिनिस्टर का वचन का विचार आप सबको अगर अच्छा लगा तो भारत के अंदर 140-45 करोड़ जनता को, सभी लोगों का इस विचार को कान में डालने का काम कौन कौन करेगा ना, वो इंसान इस धरती को पैदा होकर कुछ करके गए, जब उसको आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा, परम आनंद मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। इतना बोलते हुए मेरा पूरे भारतवासियों को यहाँ से सर झुककर शरण करता हूँ।